everyone, welcome to Man Ma'am classes. I am your teacher Pooja Man here. I hope you all are doing good, fit and fine. हंसते खेलते मुस्कुराते तुसी क्लास अटेंड कर रहे होगे. So we are doing ICSE board English reader class 4 book is Vibrant English Reader 4 lesson number 11 The Father of the Nation. Chapter ਆਪਾਂ पढ़ चुके हैं. Word meaning ਆਪਾਂ कर चुके हैं. Learning comprehension ਆਪਾਂ कर चुके हैं. इस क्लास 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ back exercise of the chapter. First is understanding the lesson. A part की है read this line and answer the questions. पहले ये line पढ़ो तो फिर जो नीचे क्वेश्चन दिते उन्हां दे आंसर. What a man he was, perhaps the greatest. कितना दा बंदा सी वो, शायद वो महान सी. कि मतलब कि कितना दा आदमी सी, कितना महान सी. Who says this line? ये line किन्ने कही? Who is this speaking to? किन्नू कही. ठीक है. Who is he speaking about? किदे बारे ये लाइनां कहियां गईयां. Think of 3 adjectives of your own to describe the man he calls the greatest. जिस person बारे एक greatest word use किया जा रहा है ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ describe ਕਰਨ ਲਈ 3 adjective use करो. ठीक है. ਕੀ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਾਈਨ ਕਿੰਨੇ ਕਹੀਆਂ? ਇਹ ਕੁਨਾਲ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਸੀ. ਕਿੰਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਸੀ. ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹੀਆਂ ਸੀ? ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਕਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ. ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਬਾਰੇ. ਠੀਕ ਹੈ. ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਦਿੰਨੇ ਆ. ਹੂ ਸੇਜ਼ ਦਿਸ ਲਾਈਨ? ਕੁਨਾਲ ਸੇਜ਼ ਦਿਸ ਲਾਈਨ. ਹੂ ਇਜ਼ ਹੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਟੂ? ਹੀ ਇਜ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਫਾਦਰ. ਹੂ ਇਜ਼ ਹੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ? ਹੀ ਇਜ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ. Think of 3 adjectives of your own to describe the man he calls the greatest. First, brave. Second adjective, truthful. Third, inspiring. है ना? सही है ना adjective? चलो. Next है B part. Who could have said this? First की we have practiced non-violence और अहिंसा if we want to be free. अगर असी आज़ाद होना चाहते हैं सानू अहिंसा दी प्रैक्टिस करनी चाहिए. सानू लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए. जो भी प्रोटेस्ट करने हैं वो शांतिपूर्वक करने. ये किन्ने क्या हो सकता है? ये महात्मा गांधी जी ने क्या सी. ठीक है. Violence will no longer work in India and we must leave the country. ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਡਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ. ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ? ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲਰਸ. ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ. ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਆਰ ਓਨ ਵਰਕ ਐਂਡ ਨਾਟ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਦ ਅਦਰਸ. ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ. My father was present at the prayer meeting when Gandhi ji was assassinated. ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ. ਕਿਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ? ਕੁਨਾਲ ਦੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਪਾਪਾ. ਹੈ ਨਾ? ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਕੁਨਾਲਸ ਫਾਦਰ. ਇਹ ਕੁਨਾਲ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ. ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਨਸਰ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੁਐਸਚਨਸ. ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ. ਵਾਟ ਹੈਵ ਯੂ ਲਰਨਡ ਅਬਾਊਟ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਐਜ਼ ਅ ਚਾਈਲਡ? ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਏ ਬੱਚੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਨਿਭਾਇਆ. ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਸ਼ਾਏ ਐਂਡ ਕੁਆਇਟ ਚਾਈਲਡ. ਹੀ ਵੁੱਡ ਰਨ ਹੋਮ ਆਫਟਰ ਸਕੂਲ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਅਦਰਸ. He was not a very good student, but he was truthful and once made a promise to his father never to tell a lie and he kept it. Next है, what do you understand by the word सत्याग्रह? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ सत्याग्रह word ਤੋਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? 2 वर्ड हैं सत्या प्लस ग्रह. है ना? सत्या is a combination of 2 words. सत्या means truth, मतलब सच्चाई, and आग्रह means firmness or insistence. It refers to non-violence, resistance or peaceful protest to stand up for what is right. जो भी सच है, ठीक है, जो भी सही है ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਫਰਮ ਰਹਿਣਾ.
कि टिके रहना, ठीक है, निश्चय कर लिया तो कर लिया, है ना। गांधी जी वॉज अ सिंपल मैन, हाउ डू वी नो दिस। गांधी जी सिंपल मैन सी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ मतलब सॉरी विचों ना एक फोन आ गया सीगा जरूरी सी, चलो कंटिन्यू करते हैं। गांधी जी वॉज अ सिंपल मैन, मतलब गांधी जी एक साधारण आदमी सी। हाउ डू वी नो दिस, सानू ये किद्दां पता चलता है, किद्दां पता चलता है उन्हां दे रहन सहन तो, वो किद्दां रहिंदे सी, की खांदे सी, की पांदे सी, है ना, उन्हां दी लाइफ स्टाइल की सी, लाइफ लिविंग की सी, है ना। चलो, गांधी जी लिव वेरी सिंपल लाइफ, गांधी जी ने बहुत साधारण जिंदगी जी। ही वोर ओनली अ लियोन क्लॉथ एंड अ शॉल, एट वेजिटेबल्स एंड ड्रैंक फ्रूट जूस एंड गॉड्स मिल्क। उन्होंने सिर्फ लुंगी ते शॉल पहनिया अपने शरीर ते सब्जियां खादियां ते फलां दा जूस ते बकरी दा दुध पीता। ही लिव्ड बाय प्रेयर एंड मैडिटेशन एंड वर्कड ऑन हिज स्पिनिंग व्हील चरखा डेली। वो प्रेयर्स करते सी, मैडिटेशन करते सी ते अपने चरखे ते ज़्यादातर मतलब हर रोज़ काम करते सी। ही बिलीव्ड इन डूइंग हिज ओन वर्क एंड हैल्पिंग द पुअर। वो अपना काम खुद करन च विश्वास रखते सी ते गरीबां दी मदद करते सी। इत्थे ना मतलब जब भी गांधी जी किते जाते सी ना, मैनू याद आया तो मैं दस रही हाँ कि वो ना अपनी बकरी नाल लेके जाते सी, क्योंकि ਉਹਦਾ ही दुध पींदे सीगे। वो कोई भी इदा हाई फाई चीज़ां नहीं यूज़ करते होंदे सीगे, उन्होंने बकरी का दुध पीना, सादा खाना खाना। वट नेम डिड रविंद्रनाथ टैगोर गेव गांधी जी, वट डज इट मीन। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को केड़ा नाम दिता तो वह की मतलब है, की दिता सी नाम, महात्मा। रविंद्रनाथ टैगोर गेव हिम अ नेम महात्मा विच मीन्स ग्रेट सोल। ਉਹਦਾ मतलब सी महान आत्मा, महान आत्मा ਨੂੰ ही छोटा करके महात्मा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why did Gandhi ji ask the people of India to stop using things made by the British। गांधी जी ने लोगों ਨੂੰ ब्रिटिश ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ यूज़ ਕਰਨ ਤੋਂ मना क्यों किया, ताकि लोग अपना खुद बनान, खुद करन, इंडिपेंडेंट होन, है ना। गांधी जी वांटेड इंडियंस टू बिकम सेल्फ रिलायंट, मतलब अपने आप ते ही डिपेंड होना, एंड नॉट डिपेंड ऑन द ब्रिटिश, ते ब्रिटिश ते डिपेंड ना हो। बाय बाइकॉटिंग ब्रिटिश गुड्स एंड प्रमोटिंग खादी हैंडमेड क्लोथ, ही इनकरेज्ड पीपल टू सपोर्ट लोकल क्राफ्ट, earn a living and show resistance to British rule peacefully। उन्होंने बाइकआउट किया ब्रिटिश गुड्स का, मतलब जो भी ब्रिटिश वालों इत्थे चीज़ां वेचियां जांदियां सी उन्हां दा बाइकआउट करके खादी जो हैंडमेड कपड़ा हुंदा सीगा, ठीक है, जो कि चरखे ते बुनिया जांदा सीगा ओहदा धागा, ठीक है, ते फिर लोकल लोग ही उहनूं क्राफ्ट करदे सीगे, ठीक है, ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਵਾਈ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕੁਨਾਲ ਕਾਲਡ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਹਿਜ਼ ਹੀਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਨਾਲ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕੁਨਾਲ ਕਾਲਡ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਹਿਜ਼ hero because he was deeply inspired by everything Gandhi ji did for India। क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हो गया सीगा जो भी गांधी जी ने देश वास्ते किया। his truthfulness, non-violence, sacrifices and simple way of life, जो भी होती मतलब, क्योंकि गांधी जी कभी झूठ नहीं बोलते सीगे, कभी भी वो वायलेंस नहीं होंदे सी, वो अहिंसा का पाठ सिखाते सी ते उन्होंने फॉलो करते सी। सैक्रीफाइस मतलब उन्होंने किन्ने सारे वर्त रखे, ईवन उन्होंने ते मरण वर्त तक रखा सीगा। उन्होंने साल्ट जिहड़ा सीगा डांडी मार्च, साल्ट मार्च किया सीगा, ठीक है, और उन्होंने सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, है ना, क्योंकि बिल्कुल सादे कपड़े पाते थे पर उन्होंने थिंकिंग बहुत हाई सी। कुनाल रियलाइज दैट गांधी जी वॉज अ ग्रेट लीडर हु ब्रॉट फ्रीडम टू इंडिया थ्रू पीस एंड करेज। गांधी जी ने शांति ते हिम्मत नाल जिहड़ी आज़ादी भारत विच लियांदी। नेक्स्ट है ऑल अबाउट वर्ड्स। फर्स्ट की है unbelievable, untouchable। These words have been formed by adding un to other words।
अन प्लस बिलीवेबल, बिलीवेबल मतलब विश्वास लायक, अन लगाता उदों ओपोजिट हो गया बेविश्वासी या इत्ते ते विश्वास ही नहीं किया जा सकता। टचेबल मतलब जिस चीज़ को टच किया जा सकता है, अनटचेबल जिन्हों टच नहीं किया जा सकता है। वी ऑफन डू दिस टू फॉर्म द ऑपोजिट ऑफ अ वर्ड, फॉर एग्जाम्पल ट्रू अनट्रू, ट्रू सच, अनट्रू झूठ। Form the opposite of the following words by adding un. केड़े word? Just, do, certain, beaten, tie, clean, tidy, well. Each word using the correct word to fill the blanks. चलो fill in the blanks करते हैं आपा। A. He never settle his room. That is why it is always, वो कभी भी अपना रूम सेट नहीं करता, मतलब कि सवारदा नहीं है। इसका मतलब ਉਹਦਾ रूम की होएगा? गंदा होएगा। गंदे दा ओपोजिट इत्थे की है? टाइडी। तो आप की करांगे? टाइडी मतलब साफ सुथरा है ना, गंदे दा ओपोजिट है। आप इत्थे की करांगे? अनटाइडी, है ना, अन लगा के टाइडी, ठीक है। दैट इज वाई इट इज ऑलवेज अनटाइडी। यू विल फॉल इल इफ यू लिव इन डैश सराउंडिंग्स। देखो अनवेल भी कर सकते हैं आप, ठीक है, और अनक्लीन भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लीन साफ होंदा है, अनक्लीन गंदा, ठीक है। यू विल फॉल इल इफ यू लिव इन अनक्लीन सराउंडिंग्स। अनवेल सराउंडिंग्स भी कर सकते हो, अनक्लीन सराउंडिंग्स भी कर सकते हो। शी वॉज फीलिंग डैश आफ्टर स्टैंडिंग इन द हॉट सन फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो सूरज के मतलब कि धुप में ज़्यादा देर खड़ी रही, इस करके वो की फील कर रही सी? बीमार फील कर रही होएगी। वेल ठीक होंदा है, इत्थे की आएगा? अनवेल, कि वो अपने आप को बीमार फील कर रही सी, वो ठीक फील नहीं कर रही सी ज़्यादा देर धुप च खड़े रहने तो बाद। कोलकाता नाइट राइडर्स रिमेन डैश इन द टूर्नामेंट। कोलकाता नाइट रिमाइंस अनबीटन, ठीक है, मतलब उन्होंने हराया नहीं जा सकिया, ठीक है। बीटन मतलब इत्थे मारताड़ नहीं, हराना, ठीक है, हारना, और अनबीटन हराया नहीं जा सकिया। दे डिड नॉट लाइक देयर किंग बिकॉज ही वाज की होएगा? जस्ट अनजस्ट, मतलब जस्ट कि वो सारिਆਂ नाल जस्टिस करता है, अनजस्ट कि वो अन्याय करता है सारिਆਂ ते, ठीक है। इट इज़ डैश वेदर ही विल कम टू स्कूल टुमारो। इट इज़ अनसरटेन वेदर। वेदर अनसरटेन होंदा है, मतलब वेदर का कोई भी नहीं होंदा है, हुणे धुप्पे होने, बदल होने, मीह पै गया, हुणे धुप निकल गई, है ना। अनसरटेन वेदर, ही विल कम टू स्कूल टुमारो। वाई डोंट यू डैश योर लेसिस। लेसिस नूं की करते हैं? टाई, है ना, टाई करते हैं, और इत्थे की है? अनटाई, अन लगाना है। वाई डोंट यू अनटाई योर लेसिस, कि तुसीं अपने लेसिस खोलते क्यों नहीं हो? ही हैड बीन रूड सो मैनी पीपल, कि वो हर बंदे नाल रूड रहंदा है। ही वॉन्डर्ड वट ही कुड डू टू डैश द डैमेज, कि वो इनू जो भी डैमेज किसी नाल रूड बोलते हो तुसी, तो एक डैमेज होंदी है ना, तुहाडी इमेज दी डैमेज होंदी, उन्हों अनडू किद्दां कर सकता है, ठीक है। ही वॉन्डर्ड वट ही कुड डू टू अनडू द डैमेज, मतलब अनडू मतलब जो चीज़ हुई उन्होंने रिवर्स करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट ऑल अबाउट वर्ड्स का। गांधी जी बिगेन मैनी हैंडमेड क्लोथ कॉल्ड खादी। गांधी जी बिगेन मेकिंग हैंडमेड क्लोथ्स कॉल्ड खादी। गांधी जी ने हाथ ना कपड़ा बनाना शुरू किया जिन्होंने कहते खादी। इन दिस सेंटेंस टू वर्ड हैंड मेड हैव बीन जॉइंड टुगेदर बाय अ स्मॉल डैश हाइफन। ये जरा हाइफन लग्या होया, ठीक है, टू फॉर्म अ सिंगल वर्ड हैंडमेड विच मीनस मेड बाय हैंड। हुण इत्थे की है, सानू कुछ हाइफनेटेड चीज़ां दित्तियां होईयां ने, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट दीज वर्ड्स जॉइंड बाय अ हाइफन। जिस तरह इत्थे देखो मेड बाय हैंड बन गया हैंडमेड, ठीक है, मतलब इनू डिस्क्राइब किया होया हैंडमेड नू। इस तरह की है सानू इत्थे फिल इन द ब्लैंक्स दिते होया और इत्थे उन्होंने डिस्क्राइब किया होया। जिदा स्टिक कैरीड फॉर सपोर्ट वैन वॉकिंग। वॉकिंग जदों चलना है अपनी हैल्प वास्ते एक स्टिक होंदी है,
ठीक है, जिद्दां बुजुर्ग लोग या जो हैंडीकैप है वो लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। उन्होंने की कहते हैं, उन्होंने कहते हैं वॉकिंग स्टिक, वॉकिंग स्टिक आप इत्थे कर लिया, ठीक है, वॉकिंग स्टिक। नैक्सट है डन टू प्रोटैक्ट वन सेल्फ, अपने आप की सुरक्षा वास्ते, अपने आप की सुरक्षा वास्ते की होंदा है सैल्फ डिफेंस, की होंदा है सैल्फ डिफेंस। अ टाई वॉन इन द फॉर्म ऑफ अ बो, बो की शेप जो टाई पाई जाती है उन्होंने कहते हैं बो टाई, ठीक है। जॉब दैट अ पर्सन हैज़ थ्रू द डे एंड द एंटायर वीक, कि एक बंदा जिहड़ा कि पूरा दिन पूरे हफ्ते काम करता है उन्होंने कहते फुल टाइम जॉब, किहड़ी जॉब कहते हैं फुल टाइम जॉब, ठीक है। वी लव टू सक और लिक इट, कि असी चूसना या चटना जिन्हों पसंद करते हैं वो की है आइसक्रीम, सारे नहीं पसंद होंगी है ना। चलो नैक्सट है ग्रामर, थर्ड पार्ट आ गया ग्रामर। रीड दिस सेंटेंस केयरफुली। गांधी जी रीच डांडी आफ्टर वॉकिंग कंटिन्यूअसली फॉर 24 डेज, ठीक है, ए याद रखियो तुसी सेंटेंस, ठीक है। वी हैव अ holiday tomorrow. I returned from Gujarat yesterday. I had gone there to see Gandhi Ji's Sabarmati Ashram. मैं साबरमती आश्रम देखा होया। He never told lies. You have learned that adjectives tell us more about nouns. देखो continuously, tomorrow, there, never एक ही है, एक दस रही है एक दा दूसरे ना लिंक, ठीक है। द एड टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब, मतलब वर्ब दा मीनिंग दस रही कि वॉकिंग है पर कितना दी कंटिन्यूअसली है, हॉलीडे पर कदों है कल है, आने वाले कल, ठीक है। मैं आई रिटर्न फ्रॉम गुजरात, मैं गुजरात गया सी, क्यों गया सीगा, इत्थे गुजरात वापस लिखन दीजिएगा देयर, उत्थे गया सीगा, ठीक है। ही नेवर टोल्ड अ लाई, झूठ नहीं बोलिया, कदों झूठ नहीं बोलिया, कदे भी झूठ नहीं बोलिया, ठीक है। दे एड टू मीन ऑफ अ वर्ब, ये वर्ब नू मीन देंदे, इन्हां नू कहंदे एडवर्ब। द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द सेंटेंस गिवन अबव आर एडवर्ब, ये तुसी इन डिटेल च ते वैसे ग्रामर च पढ़ोगे। इन सेंटेंस ए वी कैन आस्क हाउ डिड गांधी जी वॉक कंटिन्यूअसली, adverb that answer the question how or in what manner in action was performed called adverb of manner. Many adverb of manner are formed from adjectives by adding ly in the end of the word. For example, continuous एक ही है, adjective है, ly लग गया, adverb बन गया। sad की एडजेक्टिव है, एल वाई बन गया सैडली, ठीक है। फ्री एल वाई फ्रीली, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड की सीगा वी हैव अ हॉलीडे टुमारो, ठीक है। देखो इन सेंटेंस बी वी कैन आस्क व्हेन डू वी हैव अ हॉलीडे टुमारो। एडवर्ब दैट आंसर द क्वेश्चन व्हेन आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ टाइम, जो सानू कदों का आंसर दे रही है एडवर्ब, वो है एडवर्ब ऑफ टाइम। यस्टरडे, नाउ, टुडे, अर्ली, सून, ये सारी एग्जांपल्स हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम दियाँ, ठीक है। इन सेंटेंस सी वी कैन आस्क वेयर हैड ही गॉन देयर, ठीक है। एडवर्ब दैट आंसर द क्वेश्चन वेयर और इंडिकेट अ प्लेस आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। For example, here, there, inside, outside, in, above, below. Next है अपने को D sentence. How often does he lies? Never. Adverb that tell us how often or how frequently an action takes place are called adverbs of frequency. For example, always, often, sometimes, usually, rarely, never. मतलब आपा की सीखा है adverbs of manner, adverbs of place, adverbs of time and adverbs of frequency. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। Complete these sentences by using adverbs. You can choose from the ones given on the next page. Next page ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। Also write what kind of adverb they are.
मैं इत्थे फिल करांगी, तुसी काइंड ऑफ लिखना है, ठीक है। द सोल्जर फाउट, की आएगा ब्रेवली, की आएगा ब्रेवली, पेन खराब हो गया मेरा, चलो ब्रेवली। द गर्ल्स वर्कड वेरी quickly to finish the decoration. The hall is upstairs. The students are sitting there. The teacher listened to us patiently. She then told us to wait outside. Our teacher always helps us with our work. I go very often with my father when he goes to the park for a walk. They are going home today. Please come here. ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਮੈਨਰ, ਟਾਈਮ, ਪਲੇਸ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ, Mahatma Gandhi fought against the British to help India get independence. In this sentence, to has been added to the verb help. We often use to plus a verb in sentence. ਆਪਾਂ mostly इदा use करते हैं verb तो पहले to. Fill in the blanks with to, a verb to complete the sentence. He used dash home straight after school. He used to walk or used to go home straight after school. Indians saw him as a saint and began to call him Mahatma or to address him Mahatma. ठीक है। He and his followers went to Dandi to make salt or to produce salt. Gandhiji did not live long to enjoy this freedom. I am going to write my next school project on Gandhiji. ठीक है। नीचे क्या देता है, मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन विथ टू वॉक, टू फ्लाई, टू बिल्ड, टू स्विम, टू राइड, ठीक है। आप शुरू करते हैं। फर्स्ट की है टू वॉक। आई लाइक टू वॉक इन द पार्क एवरी इवनिंग, और एवरी मॉर्निंग भी लिख सकते हो तुसी, ठीक है। टू फ्लाई, birds love to fly high in the sky. To build, they worked hard to build a new library in the village. To swim, Sirat learned to swim during the summer holidays. To write, he wants to write a story about a brave king. Next, let's write. The boy or girls who never told a lie. Write a short story about 100 to 150 words with this title. Title लिखना है तुसी The boy or girl who never told a lie. ठीक है, 100 to 150 तुसी words लिखने हैं. It could even be a story about someone you know. कोई इतना ਦਾ भी हो सकता है, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, कि तुसी महात्मा गांधी बारे भी लिख सकते हो, ठीक है, तुसी लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स और अदर रिलेटिव्स हु लिव्ड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया व्हाट देयर लाइफ वाज लाइक एट दैट टाइम। वैसे तो हुण बहुत घट इदां दे लोग रह गए हैं जिन्हां ने ब्रिटिश जदों इत्थे सीगे उदों सीगे, क्योंकि 75 ईयर्स हो चुके हैं, है ना, स्टिल है कई, ठीक है। तुसी ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੈਰੈਂਟਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਵਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪ ਡਿਡ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਫੇਸ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪ ਫੇਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਲਾਈਫ ਕਿੰਨੀ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਯੂ ਮਸਟ ਹੈਵ ਸੀਨ ਹਾਊ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੀਪਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਜਿਹੜੇ TV ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਆ। Think of yourself as a reporter who is conducting an interview. अपने आप को एक रिपोर्टर समझ के उस बंदे नाल जो भी ਤੁਹਾਡੇ ग्रैंड पेरेंट्स रिलेटिव या कोई भी जो भी पर्सन है ਤੁਹਾਡੇ सामने ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ठीक है। चलो
नेक्स्ट है लिसन टू योर टीचर रीड आउट दीज वर्ड किड़े नीचे जो दिते है पे अटेंशन टू द syllables that he or she stress on. Read the word by syllable by stressing on the correct syllables. They have been underlined to help you. जितना anniversary word ver word suitable SUI su है ना suitable assassination SA void 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 meditation TAT amazing MA amazing unbelievable देखो इतने अनबिलीवेबल LIE तो लाई हुंदा है ना पर इतने यूज हो रहा है ली अनबिलीवेबल रिलीज LEA लीव प्रोफेशन फैश यूज हो रहा है प्रोफेशन वायलेंस VI वायलेंस नेक्स्ट है लेट्स डू फाइंड आउट अ फ्यू फैक्ट अबाउट द इंडियन फ्रीडम फाइटर किसी भी इंडियन फ्रीडम फाइटर के बारे तुसी फैक्ट लिख सकते हो भगत सिंह भी हो सकते हैं सुभाष चंद्र आज़ाद भी हो सकते हैं ठीक है नेहरू जी भी हो सकते हैं ठीक है किसी बारे तुसी लिखोगे देन राइट 2 or 3 पैराग्राफ अबाउट हिम और हर उन्होंने बारे झांसी की रानी भी हो सकती है मंगल पांडे भी हो सकता है ठीक है तुसी किसी भी एक फ्रीडम फाइटर बारे तुसी 2-3 पैराग्राफ लिखने हैं ठीक है नैक्सट क्लास ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ वर्कबुक ठीक है इस चैप्टर ਨੂੰ वर्कबुक ਚ ਪੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਚ ਟਿਲ ਦੈਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬਾਏ ਬਾਏ